تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ تاجروں نے کورونا کی افریقی قسم سے بچاؤ کے لیے ماسک کی تقسیم شروع کر دی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ایاز رانا سے۔ جی ایاز، ماسک کی تقسیم کن علاقوں میں کی جا رہی ہے؟ جی بالکل اس وقت میں لیاقت آباد کے کمرشل ایریا میں موجود ہوں، اور یہ جو مارکیٹ ہے یہ انجمن تاجران کراچی کے زیر اہتمام چلتی ہیں۔ لوگوں تاجر برادری کے اندر خاص کر جہاں ایک گلشن اقبال کے اندر ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن اور اومیکرون کی لہر جو کراچی میں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس میں تاجر برادری کے اندر بھی ایک تشویش کی لہر ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم گزشتہ ایک برس تک جو کبھی لاک ڈاؤن لگتا رہا اور کبھی اٹھتا رہا، کبھی ٹائمنگ زیادہ ہوتی رہی، کبھی کم ہوتی رہی، تو اس سے اب یہ جو ہے اگر نئی لہر کی بات سندھ حکومت یا وفاق کی جانب سے اگر دوبارہ سے لاک ڈاؤن آتا ہے تو اس کے لیے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت جاوید شمس صاحب جو کہ صدر ہیں انجمن تاجران کراچی کے۔ سر، یہ اب لاک ڈاؤن ہونا، اسمارٹ لاک ڈاؤن لگنا شروع ہو گیا، آپ لوگوں کی مارکیٹوں کے اندر لوگ جو ہے وہ ماسک اب لگاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، تو اس کے لیے آپ کیا جو ہے آپ نے اپنا لائحہ عمل طے کیا ہے؟ دیکھیں، گزشتہ لاک ڈاؤن کے اندر بھی انجمن تاجران کراچی نے ویکسینیشن سینٹر کے قیام کی 18 ویکسینیشن سینٹر جو ہے بنائے، جس میں ہزاروں لوگوں کو وہاں سے ویکسین جو ہے وہ لگوائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انجمن تاجران نے الحمدللہ آج سے جب سے مارکیٹیں سٹارٹ ہوئی ہیں 2022 میں، ہم نے ویکسینیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے ماسک کی اویئرنیس جو ہے وہ سٹارٹ کر دی ہے مارکیٹوں میں، اور تمام لوگوں کو ماسک کی تقسیم ہو رہی ہے۔ جیسے کہ جاوید شمس صاحب کا یہی کہنا ہے کہ ہم اپیل کرتے ہیں حکومت سندھ سے خاص کر کے وہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسا لائحہ عمل کریں تاکہ لوگوں کو دوبارہ سے آگاہی دینا ضروری ہے، کیونکہ یہ جو اومیکرون کا جو ویریئنٹ ہے یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اب دوبارہ متحمل نہیں ہو سکتے کاروباری حضرات کہ دوبارہ لگے اور ان کے کاروبار کو جو ہے دوبارہ سے تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے صحت کارڈ کو پی ٹی آئی حکومت کا بڑا سکینڈل قرار دے دیا ہے۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ سرکاری فنڈ کو نجی شعبے میں ڈالنے کا نیا طریقہ ہے، کارڈ لانا ثبوت ہے، پبلک اسپتال صحیح نہیں چل رہے۔ صحت کارڈ بھی ایک بہت بڑا سکیم ہے جو کہ پی ٹی آئی کی جانب سے سٹارٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر حکومتوں کا کام ہے اپنے ہسپتالوں کو احسن انداز سے چلانا، اور اگر آپ کے ہسپتال اچھے انداز سے چل رہے ہوں، احسن انداز سے چل رہے ہوں، ان کو تمام طبی سہولیات آسانی سے میسر ہوں، ڈاکٹرز ہوں، فیسلٹیز ہوں، عملہ ہو، ادویات ہوں، تو لوگ آسانی سے اپنا علاج کرا سکتے ہیں۔ یہ صحت کارڈ لانا اس بات کا ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ وہ پبلک سیکٹر ہسپتالوں کو اپنی حکومت میں ٹھیک نہیں کر پائی ہے، لوگوں کو کوالٹی ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی، تو اب یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم سرکار تو آپ کو کچھ نہیں کر سکتی، آپ پرائیویٹ ہسپتالوں کا رخ کریں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ سرکاری ہسپتال کو وہ پیسے دے کے آپ امپروو کر سکتے ہیں، لیکن جب سرکاری ہسپتال کو آپ پیسے دے کر امپروو کریں گے تو اس کا فائدہ عوام کو ہوگا، سرکار کو ہوگا۔ آپ کے جو اپنے دوست یار ہیں، آپ کی اے ٹی ایمز ہیں، جن کے پرائیویٹ ہسپتال ہیں، ان کو تو وہ پیسے نہیں ملیں گے، تو آپ نے سرکاری فنڈز کو پرائیویٹ سیکٹر ہسپتالوں میں ڈائیورٹ کرنے کا یہ نیا طریقہ نکالا، جس کے تحت آپ نے فیصلہ کیا کہ 10 لاکھ روپے تک ان پرائیویٹ سیکٹر کے ہسپتالوں کو دے دیا جائے گا کسی کے علاج معالجے کے لیے۔ لیکن چونکہ آپ کا انٹرسٹ عوام کی خدمت نہیں ہے، آپ کا انٹرسٹ سرکار کی خدمت نہیں ہے، آپ کا انٹرسٹ تو اپنے آس پاس کے جو لوگ بیٹھے ہیں، آپ کی اے ٹی ایمز جو ہیں، جنہوں نے آپ کا پچھلے 22 سال کی جد و جہد میں ساتھ دیا، ان کو نوازنا ہے، تو آپ نے ایک یہ نئی پونزی اسکیم۔ نسوار کے شوقین افراد کے لیے بری خبر ہے کہ مشرق وسطی کے ممالک نے نسوار کو منشیات کی فہرست میں شامل کر لیا ہے، جس کے بعد پاکستانی مسافروں کو عرب ممالک نسوار نہ لے کر جانے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے سمر عباس سے۔ جی سمر، پابندی سے متعلق آگاہ کیجیے گا، نسوار برآمد ہونے پر سزا کس ملک کے تحت دی جائے گی؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں یہ اینٹی نارکوٹکس فورس نے ایئرپورٹس پر بینر آویزاں کر دیے ہیں جس میں پاکستانی مسافروں کو عرب ممالک میں نسوار نہ لے کر جانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عرب ممالک میں نسوار کے ساتھ فضائی سفر کرنا جرم ہے۔ کسی بھی مسافر سے نسوار برآمد ہوئی تو وہاں کے قانون کے تحت سزا دی جائے گی، جبکہ نسوار کے ساتھ عرب کے ممالک کا سفر جرم قرار دیا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جس ممالک میں یہ نسوار پکڑی جائے گی اس ممالک کے قوانین کے تحت اسے سزا دی جائے گی۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز کی قیمت کم ہونے سے ایف بی آر کو کیپٹل گین ٹیکس وصولی میں کمی ہو گئی ہے۔ مالی سال 2020-21 میں شیئرز پر کیپٹل گین ٹیکس وصولی
26% कमी हो गई है। स्टॉक मार्केट में शेयर्स की कीमत कम होने से एफबीआर को कैपिटल गेन टैक्स वसूली में कमी हो गई है। माली साल 2020-21 में शेयर्स पर कैपिटल गेन टैक्स वसूली 26% इसमें कमी हुई है। मजीद तफसीलात जानेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ, कमी की क्या वजूहात बताई जा रही हैं? जी देखा जाए कि स्टॉक मार्केट में 2020 और 21 में जो मंदी के बादल छाए रहे हैं, जिसकी वजह से शेयर की कीमत कम हुई है और जो हुकूमत को कैपिटल गेन टैक्स जो शेयर की कीमत बढ़ने पर जो मुनाफा होता था उसमें कमी हो गई है और कैपिटल गेन टैक्स की वसूली में जो देखा जाए 26% से नुमाया कमी हुई है। एफबीआई ने माली साल 2020-21 में शेयर पर कैपिटल गेन की टैक्स मद में 1 अरब 92 करोड़ 50 लाख रुपए वसूल किए, जबकि जो माली साल 2019 में जो है 2 अरब 60 करोड़ रुपए के करीब जो है वसूल किए गए। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 147B के तहत सिक्योरिटीज की फरोख्त से एडजस्टमेंट जो एडवांस इनकम टैक्स वसूल किया जाता है और सिक्योरिटी की मुद्दत जो है 6 माह से कम हो तो टैक्स की शरह जो है सहमाही बुनियादों के दौरान जो 2% होती है और जबकि 6 माह से जायद और 12 माह से कम हो तो 1.5% वसूल की जाती है। तो शेयर की कीमत कम होने पर जो है टैक्स वसूली में जो है कमी देखी गई है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान हमें अपडेट करने का। नए साल पर भी महंगाई ने आज सेब की तरह शहरियों को पीछा न छोड़ा। खाम चावल महंगा होने के बाद चावलों की कीमतों में इजाफा हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे वसीम इफ्तिखार से, जो इस वक्त होलसेल और शहाबुद्दीन मार्केट के सदर मोहम्मद असलम के हमरा मौजूद हैं। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल महंगाई का असर कमोबेश हम तमाम तरह ज़िंदगी की अशिया पे देख रहे हैं। बिलखुसूस अगर हम ग़िज़ाई अजनास की बात करें और ग़िज़ाई अजनास में चावलों की बात करें तो चावल भी जो है वो महंगे हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ख़ाम चावल जो है वो तकरीबन 10 से 15 रुपये फ़ी किलो तक महंगा हुआ है, जिसका असर हम देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ चावल हैं, मुख्तलिफ किस्म के चावल वो भी महंगे हो गए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शहाबुद्दीन मार्केट के सदर और होल सेलर मोहम्मद असलम। इनसे जानते हैं कि बासमती चावल, सेलर चावल और जो टोटल चावल है कितने महंगे हुए हैं, उसकी बुनियादी वजूहात क्या है और क्या ये चावल सस्ते हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि इस साल जब चावल पैदा हुआ तो ख़ाम चावल, जिसे पंजाब में कहा जाता है मुंजी, तो वो मुंजी जो है पिछले साल के मुकाबले में इस साल 10 से 15 रुपए पर किलो में ये बिकी। उसका असर ज़ाहिर बात है जब माल बनेगा तो किस पर आएगा। तो उसी हिसाब से जो चावल सेले वगैरह के 135-40 थे बढ़ के हो गए 155 रुपये, और जो सुबह चावल था 11-21 का सबसे बेहतर वाला जो 160 था वो हो गया 190 तक, और इसी तरह से जो टोटा था वो जो 60 के आसपास था हो गया 80 रुपये तक। असल वजह यह है कि जब खाम माल महंगा होगा तो दाम बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, ये थे मोहम्मद असलम, जिनका कहना है कि चूँकि ख़ाम चावल वो महंगा हुआ है और उसके नतीजे में उसके असर मुख्तलिफ जो चावलों की इक़साम है उस पर देखा जा रहा है। तो इनका ये कहना है कि जो सेलर चावल है, बासमती चावल है और टोटल चावल है वो भी तकरीबन 10 से 15 रुपये तक महंगे हुए हैं, और जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का आला तरीन चावल जो है वो भी तकरीबन मुख्तलिफ इलाकों में रिटेल की तकरीबन 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इनका कहना है कि चावलों की नई फसल आएगी, चावलों की मज़ीद काश्त होगी तो यकीनन चावलों की कीमतों में जो है वो कमी वाक़ई होगी। हमें अपडेट कर रहे थे। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का नया सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल हो गया है, जिससे कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश मुतवक्के है। शहर कायद में बादल कब बरसेंगे ये जानने के लिए हमने राब्ता किया है डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात सरफराज से। जी सरदार साहब, कराची में बारिश के इम्कानात कब तक है और सिलसिला कब तक जारी रहेगा? कराची में बारिश का इम्कान कल शाम से है जी, 4 जनवरी की शाम से लेके फिर 6 जनवरी की सुबह तक कह लें आप। उसमें जो 5 जनवरी को दिन भर रहेगी वक्फे वक्फे से, और मॉडरेट बारिश है जनरली, और किसी किसी वक्त तेज स्पेल भी हो सकता है। तो 6 जनवरी की सुबह या दोपहर तक है, फिर दिन में कुछ हो सकता है गैप आ जाए। अच्छा सर, बताइएगा मौसमी एतबार से इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है? इस वक्त मतलब जुज़वी तौर पर अबरालूद है और साफ या जुज़वी तौर पर अबरालूद कह लें आपको, और टेम्परेचर वही 24 चल रहा है और इस वक्त तक तो ठीक है। कल मैंने जैसे कहा था आपको कि कल शाम यानी 4 जनवरी की शाम या रात से इम्कान होगा, कल ज्यादातर मतलब अबरालूद रहेगा और फिर शाम में चांसेस होंगे हल्की बारिश, फिर बाद में रात में कुछ तेज स्पेल भी हो सकता है, और फिर परसों दिन को खास कर 5 तारीख की दिन भर ऐसे ही रहेगा, किसी गरज चमक के साथ बारिश होगी। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमें अपडेट करने का।
और यहाँ आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर बल्दिया वस्ती में गुले दाऊदी की मुनफरद नुमाइश के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। नुमाइश से कबल ही बल्दिया वस्ती की तालीमी बाग में फूलों की बहार आ गई है। इस पर बात करते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में मौसम बहार का आगाज़ हो चुका है और इस हवाले से जो फूलों की नुमाइश है, कुदरती बहारें वो लोगों को दिखाई जा रही हैं। KMC की जानिब से, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की जानिब से फूलों की नुमाइश जो है मुनक्किद की जा रही हैं और उसकी तैयारियां जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का महकमा बागात अपनी साल की पहली गुले दाऊदी की नुमाइश करने जा रहा है। दिलचस्प अमर यह है कि गुले दाऊदी एक ऐसा फूल है जो कि सर्द मकामात पर जो है वो जन्म लेता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के महकमा बागात की ये कारगुजारी है कि यहाँ गुले दाऊदी ना सिर्फ ये कि ख़ुद तैयार किया जाता है बल्कि इसकी फूलों की नुमाइश भी की जाती है। इतराफ़ के मकीन भी इससे खुश हैं। डायरेक्टर पार्क नदीम हनीफ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नदीम साहब, ये खूबसूरत नुमाइश के इनकाद में कितना वक्त लगा, कितना इसमें आपको जो है लेबर दरकार होती है, और क्या ऐसी खासियत है कि गुले दाऊदी जो कि ठंडे इलाके का पौधा है वो आप यहाँ पर इसकी नुमाइश कर रहे हैं? रिजवान भाई बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने बताया, DMC सेंट्रल का माजी है कि 4 फ्लावर शो ऑर्गेनाइज करती है DMC सेंट्रल। जैसा कि आपको बेहतर पता है कि 16 एकड़ पे नर्सरी है गुलबर्ग जोन की। इस तरह की 4 नर्सरीज हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, और ये जो हम शो करने जा रहे हैं क्रेंसनथीमम, जिसे हम आम ज़बान में गुले दाऊदी कहते हैं, इस वक्त पाकिस्तान में जो गुले दाऊदी है या तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल करता है या 2 शायद कंटोनमेंट ने, एक इस्लामाबाद और एक लाहौर, ये करते हैं। और जब हम क्रेंसनथीमम का नाम देते हैं तो यहाँ जितना भी डिस्प्ले है ये इसी फैमिली का है जिसे हम क्रेंसनथीमम या गुले दाऊदी कहते हैं। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने सुना है कि वक्त बदल रहा है और वक्त बदलने के साथ साथ जो इंतजामिया के इक़दामात हैं उसमें भी बेहतरी हम देख रहे हैं। ख़ास तौर पे महकमा बागात डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर बात की जाए तो इसकी जो कारकर्दगी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मुनफरिद एजाज़ इनको हासिल हैं, जिसमें एक एजाज़ का और इजाफा होने जा रहा है, जिसके बारे में डायरेक्टर पार्क नदीम हनीफ अभी बता रहे थे। जी बहुत शुक्रिया रिजवान, हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी ने मुलाकात की है। मुराद अली शाह की जानिब से शाहनवाज धानी को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। वज़ीर आला सिंध ने शाहनवाज धानी को अपनी ट्रेनिंग पर मज़ीद तवज्जो देने की हिदायत भी की है। कुतुब मेले का आज आखिरी रोज है। एक्सपो सेंटर में शहरियों का जमा गफीर मौजूद है। शहरी अपनी अपनी पसंदीदा किताब की तलाश में मगन है। मज़ीद जानने के लिए बात करेंगे, सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ुबैर, बताइएगा। जी, जैसे कि मैं इस वक्त एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हूँ और आज कुतुब मेले का आखिरी रोज़ है और अवामुल नास का जमे गफ़ीर जो है आज एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं। तलबा व तालिबात की जानिब से भी काफ़ी बड़ी तादाद में शिरकत की जा रही है। ना कि सिर्फ निसाबी हम निसाबी कुतुब बल्कि तारीख़, मजहब, सकाफ़त से रिलेटेड भी किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ तालिब इल्म मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि वो क्या समझते हैं कि कुतुब मेले का इनेकाद जो है मुस्तकबिल में भी होना चाहिए और उर्दू अदब का रुझान कैसे बढ़ाया जा सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, ये 16th इंटरनेशनल बुक फेयर है जो कि कराची एक्सपो सेंटर में, तो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे बहुत किस्म के बुक्स हैं, इस्लामिक बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, लेकिन हमें मतलब ऑनलाइन हम बुक्स बाई कर लेते हैं, लेकिन ये हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ आके बुक्स को ख़ुद मतलब देख के हम पढ़ सकते हैं और हम बाई कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक से। बहुत सारे बुक्स हैं यहाँ पे, हर किस्म के बुक्स मिलेंगे आपको, जैसे कि लिटरेसी के बुक्स मिलेंगे, इंग्लिश के बुक्स मिलेंगे, साइंस के बुक्स मिलेंगे, और यहाँ पे मैंने काफ़ी बुक्स देखे भी हैं और बाय किए भी हैं अपने सब्जेक्ट के मुताबिक से। और ऐसे मतलब आगे भी होने चाहिए ऐसे इवेंट्स मुस्तकबिल में स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा ये रहेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। जी, जैसे कि इस वक्त मेरे साथ तालिब इल्म मौजूद थे, उनका यही कहना था कि ये जो इनेकाद एहतमाम किया गया बुक फेस्टिवल का एक्सपो सेंटर की जानिब से बेहतरीन इक़दाम है और तालिब इल्मों के अंदर किताब का रुझान पैदा करने के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया एक बेहतरीन इनिशिएटिव है। तो मुस्तकबिल में भी हम उम्मीद रखते हैं कि इस तरह के फेस्टिवल्स का एहतमाम किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया ज़ुबैर।